أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صلوات علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ، اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں صحیح دین پر ثابت قدم رکھا اور ہمارے دلوں میں عشق امام حسین اور معرفت امام حسین پیدا کی. یہ معرفت نہ ہو تو انسان دنیا میں انسان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا. توجہ چاہتا ہوں، سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، یعنی جو ہمارا موضوع تھا. لہذا اذان محترم، کل کی جو گفتگو تمام ہوئی تھی وہ کوفے کے حالات تھے. لہذا ہم نے سوچا کہ چونکہ اب آخری مجلس ہے کہ کیا کردار رہا، کیا رول رہا اسیران کربلا کا حسینی مشن میں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جو کربلا میں 10 گھنٹے کے اندر شہداء نے شہادت کا درجہ حاصل کیا. اب جس مقصد کے تحت امام حسین نکلے تھے اس مقصد کو قیامت تک کے انسانوں کو کیسے پہنچایا جائے، اس کی ذمہ داریاں کربلا کی خواتین اور ان کے بچوں نے اور امام معصوم نے اپنے کاندھے پر لی. اور اس طرح سے یہ قافلہ چلا کہ ہر قدم پر ہر جو بھی جملہ بولا جا رہا، جو ایکشن، جو ری ایکشن، جو باتیں، جو خطبے، ہر چیز میں مقصد یہ ہے کہ مقصد حسین پھیل رہا ہے کہ نہیں. گویا یہاں سے ہمیں یہ پیغام بھی مل رہا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر جتنے بھی پروگرامز کر رہے ہیں ہمارے بھی ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے کہ غم حسین، واقعہ کربلا، دین، اسلام، یہ تمام چیزیں لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. اب عزیزان محترم، ان خیالوں میں ایک خیال یہ ہے، جیسا کہ میری عادت ہے اور میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں، 5-7 منٹ لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل اگر خلوص نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس کا اثر دکھائی دینے لگتا ہے. یعنی اگر مجلس کی بات لے لی جائے، دل نہیں ہے، یعنی خلوص سے نہیں آ رہا ہوں میں پڑھنے، تو مجھے پڑھنے میں نا وہ کیفیت نہیں آئے گی اور اس کا اثر آپ پر بھی پہنچے گا، اس کا اثر پہنچے گا کہ پھر آپ کو سننے میں وہ لطف نہیں آئے گا. اگر آپ مجلس کیا کرتے تھے اور اس بار ارے بس ٹھیک ہے کرتے تھے، والد صاحب لاؤ ہم بھی کر لیں، تو اس کا اثر اس مجلس میں دکھائی دے گا، وہ رونق نہیں رہے گی. یہ راستہ خلوص والا ہے. یہ راستہ، یہ وادی جو ہے نا، یہ خلوص سے بھٹکے کہ بس معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا. لہذا خلوص ہو اور جو اجر ہو وہ خدا سے طلب کریں.
जो अज्र हो वो खुदा से तलब करें, इनको ना बताएं हमने यतीम के साथ किया, हमने बेवा के साथ क्या किया, हमने ये कर दिया वो कर दिया ना, इनको उनको बताने की जरूरत नहीं है। खुदा ने तो खुद ही वादा किया है कि तुम्हारा काम है नेकी करना, तुम नेकी करो। तो परवरदिगार फिर उस नेकी को बताएगा कौन? मैं देखिए मफहूम पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि अच्छा तुम क्या चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मेरी नेकियां लोगों तक फैले, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, कभी यहां बताता हूं, कभी वहां जाके बताता हूं, कभी इनसे मुलाकात हो गई इनको बताता हूं, आज मैंने ये कर दिया, आज मेरा ये अमल रहा, ये यतीम, ये बेवा, ये गरीब, ये फीस, ये कॉपी, ये किताब, ये बैग, ये उनको दे दिया, ये हमने किया, आज यहां तक पहुंच गए, इसमें हमारा रोल है। तो अल्लाह जानते क्या कहता है? अच्छा चलिए मैं आपको एक मुख्तसर सी दास्तान सुना देता हूं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, 3-4 मिनट बस। अल्लाह ने एक नबी पर वही की कि देखो कल जब आप अपने घर से बाहर निकलिएगा ना, हो सकता है आपने ये वाकया सुना हो जो कि बहुत मशहूर है, तो जो चीज सबसे पहले मिले उसे खा जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूं, और दूसरी चीज जो मिले ना खजाना, उसे छिपा दीजिएगा। और ऐसी और भी बहुत कुछ कहा, हमारे मौजू में एक ही चीज है। अब जब ये अगले दिन निकले तो जैसे ही दरवाजा खोला देखा पहाड़, पहाड़, पहाड़ी भी नहीं, पहाड़, बड़ा सा पहाड़। अब ये खड़े होकर सोच रहे हैं अल्लाह ने कहा था जो मिले खा जाना, अब इसको कैसे खाऊं? फिर खुद ही कहते हैं अल्लाह ने कहा है कुछ तो बात होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आगे बढ़ रहे हैं ना, तो जैसे दुनिया में हमारे उल्टा होता है, क्या हम दूर से कोई चीज देखते ना छोटी दिखाई देती है, आगे बढ़ते हैं तो बड़ी बड़ी, फिर इतना ऊंचा पहाड़, और यहाँ जस्ट अपोजिट उल्टा हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है वो छोटा हो रहा है, ये और आगे बढ़े वो और छोटा हुआ। खुद ही कहते हैं एक लुकमे के मानिंद हो गया, जैसे हम रोटी का एक लुकमा बनाते हैं चावल का, तो अल्लाह ने कहा था खा जाना, मैंने खाया ना, तो नबी थे उसके बावजूद कह रहे हैं ऐसा टेस्ट अपनी लाइफ में कभी चखा ही नहीं था। फिर आगे बढ़े, अब अपने मौजू की बात, फिर आगे बढ़े ना, देखा वाकई खजाना है, जल्दी से गढ़ा खोदा, उसको अंदर रखा, मिट्टी डाला, आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़े, सुनिएगा बहुत तवज्जो है मोहतरम, इन बातों को अपने दिलों में उतारिए। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि दिन खत्म हो गए, मौजूद बहुत बहुत सी बातें बाकी रहेगी, जो मुझे अफसोस हो रहा है। अजीजान मोहतरम आगे बढ़े ना, देखा खजाना, जल्दी से मिट्टी हटाई, अंदर रखा, मिट्टी डाली, आगे बढ़े, आवाज आई, यानी खजाने के वापस निकल आने की आवाज आई। अब जो पलट के देखा, अरे खजाना फिर बाहर आ गया, फिर पलटे कि लाओ फिर छिपा दें। फिर खुद ही कहते नहीं अल्लाह ने एक बार कहा था, 2 बार नहीं कहा था। अब यहां पर एक जुमला मैं नजर करना चाहता हूं, वो मोहब्बत, वो अकीदत आपकी, वो आपकी मेहरबानियां, वो खुदा से तवस्सुल, वो मोहब्बत, वो सब अपनी जगह है, लेकिन बस एक गुजारिश कर दूंगा, दुआ हो, अमल हो, कुरान की आयात हो, अहले बैत ने जितनी बार कहा है उतनी ही बार पढ़िए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए कि हम उनसे बेहतर नहीं जानते। कानून अहले बैत लेकर के आए हैं खुदा का, उन्होंने जो दिया है उसी पे हमें चलना है। मेरा दिल कह रहा है कि हम इस जुमले को 8 बार कहें। क्यों कहोगे? जब नबी ने कहा, जब मासूम ने कहा 3 बार कहो तो 3 बार कहो, वरना 2 रकत नमाज सुबह की पढ़ना, तुम्हारा दिल 3 रकत कहे तो आप नहीं पढ़ सकते। बहरहाल अब अज़ीज़ान मोहतरम, उन्होंने कहा अल्लाह ने एक बार कहा था, लिहाजा हमारा जो काम था वो हमने कर दिया। वही बात जो हमने जहां छेड़ी, और ये वाकया ज़हन में आ गया। आए वापस, सोए, खुदा ने फिर से वही किया, उन्हें ख्वाब दिखाया। अब इन्होंने सवाल किया कि परवरदिगार, वो पहाड़ एक तो काला सा था, दिखने में खतरनाक, वो बड़ा सा, मगर आगे बढ़ा, छोटा हुआ, खा गया, क्या लुकमा बेहतरीन। कह लेंगे वो, देखिए हम लोगों को समझाने के लिए ना, वो तो नबी है, बहरहाल है ना, नबी है, अल्लाह के खास नबी। कह लेंगे वो गुस्सा होता है लोगों का कि जब वो शुरू होता है ना, आता है तो पहाड़ की मानिंद होता है, अब ये कर दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, आज के बाद खत्म मामला, ये है वो है, यानी पहाड़ की मानिंद होता है। मगर इंसान थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेना तो उसी मीठे लुकमे की तरह हो जाता है। कहने लगे अच्छा परवरदिगार, वो जो खजाना निकल आया और मैंने उसे ढक दिया, वो फिर निकल आया परवरदिगार, मैं तो आगे चला गया है, इसलिए कि तूने एक दफा कहा था, कहा वो तुम्हारी नेकियां हैं, तुम्हारा काम है नेकी करके छिपा दो,
मेरा काम है उसे दोबारा वापस पलटा देना। अज़ीज़ान मोहतरम, यही मैं जुमला कहना चाह रहा हूं कि हम जब नेकी करें ना, उसे इधर उधर ये वो ना फैलाएं, क्योंकि हमारी, अगर हम फैलाएंगे, बहुत तवज्जो, अजीम जुमला, इस हिस्से का आखिरी जुमला, अगर हम उसको फैलाना भी चाहेंगे ना, तो हम अपनी, मैं जुमला और वाज़े करूं इसलिए मैं कह रहा हूं, हम अपनी औकात के मुताबिक कर पाएंगे। बस यहां पर गली में, चौराहे पर फोन करके, किसी खास जगह, हम अपनी औकात के मुताबिक अपनी नेकी को फैला पाएंगे। खुदा ने कहा तुम छिपाओ, हम अपनी कुदरत के मुताबिक उसे अया करेंगे। और जब खुदा किसी की अच्छाइयों को अया करता है, तो फिर अल्लामा मजलिसी का इंतकाल कब हुआ नहीं मालूम, मगर आज जिक्र होता है। मुकद्दस अर्दबेली कौन है, आज हम जानते हैं। अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब कौन है, आज हमें मालूम है। जनाब हाजी नाजी कौन है, ये हमें मालूम है कि नहीं अज़ीज़ान? आपका काम है नेकी करना, नेकी करके खुदा के हवाले कर दो, नेकी कर दरिया में डाल। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यहां जो कहा गया दरिया में डाल, मतलब कि बताओ नहीं इधर उधर, खुदा के हवाले। खुदा जब उसे अया करेगा, अल्लाह अकबर, तो फिर कहां, क्योंकि वो अपनी कुदरत के मुताबिक करेगा, हम अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक कर पाएंगे। बस अज़ीज़ान मोहतरम, कल की जो गुफ्तगू तमाम हुई थी, वो यहां पर हो गई थी कि कूफे में ये काफिला पहुंचा है, कूफे में ये काफिला पहुंच गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जनाब ज़ैनब ने, फिर जनाब उम्मे कुलसूम ने, है ना, और फिर जनाब सैयद सज्जाद ने, और फिर वहां जनाब रबाब की, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की गुफ्तगू, वो मसाइब वाला जुमला है जो मैंने पढ़ा नहीं, और आज भी बहुत जल्दी से मैं गुजर जाता हूं। सरे इमाम हुसैन के साथ शिम्र है, उमर साद है, और दीगर तमाम सरदारों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि ले जाओ इनको, और पहले खत लिख दिया, मैं उसकी जबानी कर रहा हूं, यानी उसने अपने अमीर को खत लिख दिया, यजीद को खत लिख दिया कि यहाँ ये काफिला जो आपने हमें हुक्म दिया था, और बसरा से बुला के कूफे की गवर्नरी थमाई, और उसके बाद ये हुक्म दिया कि ये चीज होना चाहिए। सरे हुसैन जुदा हो चुका है, बीवियां असीर हो चुकी हैं, हमने इतने लोगों को मार दिया है, और इन तमाम शोहदा का सर हम आपकी तरफ भेज रहे हैं, और जो उनके साथ में जो खवातीन और जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरफ हम भेज रहे हैं। अब ये खत पहुंच गया। अब जब खत पहुंच गया, अब देखिए, अब यहां पर जरा सा बड़े मरहले हैं जिसको मुझे तेजी के साथ बहुत जल्दी पूरा करना है, क्योंकि वो 40-50 मिनट में हो नहीं पाएगा। अब जब ये काफिला चला, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि देखो, कूफे से निकल रहे हो, हालात बदल चुके हैं, क्योंकि खुतबा रोने और गिरिया करने का, लोगों की हालात, जहनियत बदल चुकी है, लिहाजा अभी यहां से जो निकल रहे हो ना, मारूफ रास्ते से मत जाओ, यानी जिससे सब जाते वहां से मत जाओ, अभी इनको जरा सा उन रास्तों से लेकर के जाओ, कूफे से निकल रहे हो, कि जहां ज्यादा पब्लिक ना मिले, इसलिए कि उनके दिलों में अगर इश्क अली और इश्क हुसैन अगर जाग गया, तो कहीं तुम पर हमला ना कर दे, तुम पर हमला ना कर दे। लिहाजा अब जो ये काफिला चला, तो तारीख ये कहती है कि तकरीबन 19 से 20 मंजिल, आप समझ रहे हैं, तकरीबन 19 से 20 मंजिलों को तय करता हुआ तब जाकर के कहीं शाम पहुंचा, तब जाकर के कहीं। अब उसमें तारीख ये कहती है, अब जब मैंने उन तमाम मंजिलों को पढ़ा, ताकि मैं आप सब तो नहीं सुना सकता, लेकिन अक्सर मंजिलें ऐसी भी हैं और ऐसे रास्ते, उसमें वाकयात ऐसे हुए हैं कि जब ये काफिला गुजरा, तो जब कुछ इलाके ऐसे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, जब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई फला यात्रा निकलेगी, है ना, वो यहाँ इस शहर से निकलेगी, यहाँ 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 होते 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 इस शहर में, फिर इस शहर में, फिर इस शहर में, वहां जाके तमाम हो जाएगी, तो उसका कितना इंतजाम होता है, कितना इंतजाम सरकार करती है। भाई यहाँ से काफिला जा रहा है ना, उसके साथ में है, वहां खाने पीने का इंतजाम कर देना, उसके लिए चेयर होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, जरा शामियाना लगा देना, थक जाए तो जरा आराम करा देना, तो ये सारे इंतजाम वहां भी थे कि ये लोग जैसे ही निकल रहे, अब अगली मंजिल आने वाली है, तो इलाका किसका है, हुकूमत किसकी है। देखिए, इन चीजों को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये काफिला, ये कह देना आसान है कि हुसैन का लूटा हुआ काफिला कूफा और कूफा से शाम चला गया, ये 3 सेकंड की बात नहीं है, ये एक सफर को पहुंचा है, कई दिनों की मशक्कत,
कई दिनों की सख्तियों को बर्दाश्त करता हुआ और कई रातों की मुसीबतों को झेलता हुआ, और जब ये गुजर रहा है ना, तो मैं चाहता हूं कि 2 4 6 मंजिलें जो मैंने चाहा कि मैं आपको सुना दूं, ताकि वो मंजिलें क्या है जो आपके ज़हनों में आ जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख कहती है कि जो मंजिल जब कूफे से आगे बढ़े हैं तो मशहदुल नुक्ता आया है, उसके बाद जो है मूसल जो आप अक्सर सुना करते हैं, जो जंग वगैरह में भी आजकल खबरें आ रही है, फिर ऐनुल वर्दा है, फिर हलब है, फिर बालबक है, फिर यानी कई मंजिलें हैं, फिर लास्ट में जो है वो दमिश्क है, वही शाम का इलाका, शाम का इलाका। 20वीं मंजिल इसमें लिखा हुआ, 20वीं मंजिल है। यानी अब वो जो मैंने मिसाल दी है कि रथ यात्रा या पग यात्रा जो निकल ली, तो क्या होता है, सरकार कैसे इंतजाम करती, तो वहां भी इंतजाम हो रहा। अब उसको सुनिए पहले आप। काफिला चल रहा है, कासिद आगे आगे दौड़ रहा है, घोड़े को दौड़ा के कासिद आगे दौड़ रहा है। अब मान लीजिए कि बालबक आ गया, ठीक, तिकरिक आ गया, अब वहां पे काफिला पीछे, ये पहले पहुंच गया। इलाका किसका है, हुकूमत किसकी है, यजीद की है। यजीद का खत दिखाया, देखो काफिला आ रहा है, क्या मतलब, क्या करना है, शहर सजाओ, शहर सजाओ, लोगों को इकट्ठा करो, क्या होगा, का वहां से इन असीरों का काफिला आएगा। कौन है ये लोग, कई लोग बागी लोग हैं, इस्लाम से खारिज लोग हैं, और इनका दीन से इस्लाम से कोई मतलब नहीं। जानते क्या मतलब हुआ, जब कोई मतलब नहीं है तो पत्थर आएंगे, आग बरसाई जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा, ये है वो है, एक पब्लिक का गिरोह होगा जो खाली इसलिए आएगा कि देखे देखे कुछ, क्योंकि हर समाज में ऐसे भी तो लोग हैं कि देखें हो क्या रहा है, ये क्या हो गया, भीड़ क्यों जमा है। तो हर शहर में ये इंतजाम किया जाता था कि जब भी कोई शहर आने वाला होता था तो पहले जाकर के कासिद उस शहर के जो गवर्नर यजीद का होता था उसको हुक्म देता था कि देखो तुम्हारे मालिक ने क्या कहा है, इसको सजाओ, इसको ऐसा कर दो और ये कर दो और वो कर दो, और शोर मचाना, तुम्हारी औरतें बाहर निकल आए, तबला बजाएं। फिर आपने देखा होगा कि अरब में जो भी रसूमात हैं खुशियां मनाने की है, बिल्कुल कपड़े रंगीन पहन लो और ये और वो तमाम चीजें। तो अक्सर शहरों में ये हुआ कि जब ये काफिला जाता था तो यही हाल होता था। ऐसा नहीं है कि खाली शाम में ये काफिला गुजरा है और इमाम को कहना पड़ा हाय शाम हाय शाम, अब उसकी भी वजह बताऊंगा। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं कि जब उन शहर के लोगों को ये मालूम हुआ कि ये और कोई काफिला नहीं है, ये इमाम हुसैन का कटा हुआ सर आ रहा है, तो चूंकि वहां कुछ इतनी तादाद थी शियों की या उनके इमाम के मानने वालों की कि उन लोगों ने बगावत कर दी, तो कुछ शहर ऐसे भी हैं कि जिसमें ये काफिला एंट्री नहीं ले पाया, नहीं ले पाया। क्यों, इसलिए कि उमर साद को शियों को ये लगने लगा कि कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं हम पर हमला ना हो जाए, लिहाजा उस शहर में पहुंचने से पहले ही कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि उस शहर की सरहद में जाने से पहले ही वो क्रॉस हो जाते थे और फिर अगली मंजिल के लिए वो आगे बढ़ते थे। कई जगह जंगें हुई हैं, कई जगह मारे गए हैं लोग, क्योंकि यजीद के आदमी ज्यादा थे, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ और सर हुसैन को लोगों ने देखा तो जो भी तादाद थी और आगे बढ़ी तो तहे तेग कर दिया गया। ये सारे सारे वाकयात हैं, सारे पस मंजर है। अहले बैत के कहीं कहीं चाहने वाले मिल जाते थे, और जब चाहने वाले मिल जाते थे, वो बातें नहीं पेश करूंगा जो मसाइब में आप सुना करते। लेकिन जब पहली सफर को, अब हो सकता है तारीख में इख्तिलाफ भी हो, इसलिए कि करबला की तारीख में बहुत इख्तिलाफ, कोई हो सकता है कोई सुना हो या कहीं पढ़ा हो कि अरे नहीं वो फला तारीख को पहुंचे थे, तो भाई चलो ठीक है जो तुमने पढ़ा हो वही मान लो। मगर यह है कि काफिला दमिश्क पहुंचा, और जैसे ही दमिश्क पहुंचा यानी शाम पहुंचा, मैंने बहुत सारी मंजिलों को छोड़ दिया, वरना एक एक पैराग्राफ है उसको पढ़ा जाए तो कम से कम 2-3 मजलिस चाहिए। अब जब दमिश्क शाम में ये काफिला दाखिल होने वाला, दरवाजा सामने है, पहले जमाने में ऐसे ही होता था, शहर में दाखिल होना है तो दरवाजा बनाया, इधर उधर से नहीं आ सकते। तो शाम का दरवाजा, ठीक, मसाइब नहीं पढ़ रहा, अब सुनिए, मैं यहां पे आपको रोकूंगा। मदीना, मक्का, ठीक, कूफा, बसरा, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कभी ना कभी, तवज्जो सुनिएगा इन बातों को, कभी ना कभी किसी ना किसी मासूम का कदम इस हैसियत से पड़ा है कि तबलीग हो। मक्का, ठीक है, नबी वही रहे, मदीना क्या कहना, ठीक है, नबी वहां रहे, इमाम वहां रहे, 36 से 40 हिजरी तक कूफे में मौलाए कायनात पूरे घर वालों के साथ में रहे, शहजादियों ने दर्श दिया है,
लोग जानते हैं बसरा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जाना, वहां इमाम के चाहने वाले, ये तमाम चीज, ऐसे बहुत से इलाके हैं। मगर इसको जरा समझिए, तब आपको समझ में आएगा इमाम ने क्यों कहा हाय शाम, हाय शाम। 40 साल तक उस शाम का वो इलाका कि जहां यजीद के बाप की हुकूमत है, और ये कौन सा इलाका है, मैं कैसे समझाऊं। ये वो इलाका है कि जहां पर वो छोटा बच्चा जो अभी गोद में था, जिसे लोरी सुनाई जा रही है, ए बेटा, एक अली नाम का, अगला जुमला मैं नहीं कह सकता, जो बुरे अल्फाज यूज किए गए, इस्तेमाल किए गए, वो नहीं। ए बेटा, एक अली नाम का ऐसा शख्स है और वैसा शख्स है, और ये कर दिया और वो कर दिया। कोई खुतबा मिंबर पे जुमे का नहीं हो सकता जब तक कि अली, मौला अली के खिलाफ खतीब कुछ बुरे अल्फाज इस्तेमाल ना। ये सुना, ये तो आप लोगों ने सुना है कम से कम, लेकिन क्या ये सुना था कि कितने साल हुकूमत रही माविया की? तकरीबन 40 साल से उसका होल्ड है। कहां पर? शाम में। आप बताइए, शाम में जाकर के तबलीगी लिहाज से इमाम अली कितने दिन रहे? कभी सुना आपने? कितने दिन रहे? इमाम हसन कितने दिन रहे? इमाम हुसैन कितने दिन रहे? चौथे इमाम कितने दिन रहे? चौथे इमाम तो अभी जा रहे। इसका मतलब समझ में आया? ये वो इलाका है जहां लोग, सच में कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो ईसाई थे, कन्वर्टेड हुए, मुसलमान हुए, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है तारीख में। शाम वो इलाका है जहां ईसाई बहुत थे और वो कन्वर्ट होकर के मुसलमान हुए। मुसलमान तो हुए मगर उनको दीन सही से नहीं बताया गया। अब आप ये समझ सकते हैं कि दीन बस इतना वो जानते थे कि उन्होंने ताज्जुब किया कि क्या अली नमाज पढ़ते थे? वो मस्जिद में क्या करने गए थे? सजदे में जरबत लग, अली, उनका नमाज से क्या ताल्लुक? आप देखिए अजान मोहतरम, यजीद क्या कह रहा है? खारजी गिरोह आ रहा है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं इसलिए ये जुमला जबान पे लाना पड़ता है। ये ऐसा गिरोह आ रहा है जिनका कुरान से कोई रिश्ता नहीं, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं, वही वगैरह जो है ये सब, यानी उसके बकौल सब फसाना है, सब गड़ी हुई बातें हैं, ना कोई वही, ना कोई कुरान, ना कोई दीन, ना कोई इस्लाम। और यजीद क्या कहता है? मेरा बस चले तो मैं खाना काबा की छत पे बैठ के शराब पी। और यजीद वो है कि अभी तक उसने, यानी मक्का जाके हज वाली जो अरकान है, ये तमाम चीजें, हाजी हजरात बैठे हुए है ना, कितने चीजें हैं, सफा मरवा, या वाह, मेरा नहीं गया हुआ था। ये जो जुमला मैं कहा, इसकी खास वजह जो अभी आगे आएगी। अभी आप ये समझिए कि शाम का क्या इलाका, नफरत भरा दिल लेकर के यजीद का बाप क्या कह रहा है? अपने आदमियों को तैयार करता है। आज का दौर तो मोबाइल का है, बच्चे घर में पड़े रहते हैं, मगर वरना हमें भी अपना बचपना याद है, और आप लोग को भी ढूंढा जाता था, कहाँ है, कहाँ है। अब गर्मी की छुट्टी हुई तो पता चला बाग में वहां पे बैठे हुए, दोपहर में तुम लोग यहाँ बैठे हुए, धूप लग जाएगी, चलो घर चलो बेटा, यहाँ है, और आज बेटा जाओ बाहर खेलो, जाओ बाहर खेलो। ठीक, अब आप लोग का दौर, जो बुजुर्ग हजरात सोचिए, है ना, वो दौर, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यजीद की बाप की साजिश देखिए कि नफरत कैसे भरी जाती है। ये हर दौर में हुआ है, दुश्मन चाहता है कि नफरत भरी जाए। तो नफरत भरने के लिए क्या किया लोगों के दरमियान में? जहां बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वहां बकरी के, भेड़ के, जो भी छोटे बच्चों को जो दिखने में भी अच्छा लगे, उन्हीं बच्चों के दरमियान ले आके छोड़ देता था, कहता था कि छोड़ देना। और जब वो बच्चे उनके साथ खेलने लगते थे तो इतने में एक शख्स मुंह ढक करके आता था, उन्हीं का आदमी, और वो बच्चे को उठा करके लेके भाग जाता था। और जो ये बच्चे चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, अरे हम खेल रहे थे, तो फिर इनका आदमी कहता था, जानते कौन था? यही अली थे। जानते कौन थे? यही अली थे, ये अली हैं। और एक जहां तो अजीजान मोहतरम दिल फट जाता है, बड़े बड़े उस तरह से मकान नहीं हुआ करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे। तो कहीं कहीं तारीख में यह भी मिला है कि सोती हुई मां के आगोश के बच्चे को छीन कर इन्हीं का आदमी लेके भागता था रात के अंधेरे में। और जब मां घबरा करके उठती थी, अरे मेरा बच्चा कौन लेके भागा, अरे मेरा बच्चा कौन लेके भागा। और जब ये दौड़ती, मां होती है, फिर भूल जाती है कि किस हाल में दौड़ रही है, तब इन्हीं का आदमी दाढ़ी रख, क्या हुआ? अरे रात की पहर में तुम कहां जा रही हो? अरे मेरा बच्चा कोई लेके भाग गया, मेरा बच्चा कोई लेके भाग गया। तुम्हारा बच्चा था? कहा मेरा बच्चा, वही अली लेके भागे।
اب آپ بتائیے جب اس خاتون کا دوسرا بچہ پیدا ہوگا، تیسرا ہوگا، جو پڑوس میں ہے، پورے شام میں یہ خبر، ارے جانتے کیا کیا لے جاتے ہیں اور پھاڑ دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں. اب یہ سب نفرت بھرنے کے لیے آدمی کس حد تک جا کر کے گر سکتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب وہ لوری میں کیا کریے، اے بیٹا تمہارا ایک بھائی تھا جسے علی نام کا، اگلا جملہ نہیں کہہ سکتے، لے کے چلے گئے، یہ ہم عزت سے کہہ رہے ہیں، ورنہ لے کے چلا گیا تھا اور یہ ہو، اور وہ تو ایسا کر دیتا ہے، اس کو تو مزہ آتی ہے جب بچے کو اس طرح کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں. اب بتائیے نفرت نہیں پیدا ہوگی؟ وہ بچہ علی لکھ کر کے دیوار پہ مارے گا نہیں. یہ میں آپ کا یوں ہی ٹائم نہیں لے رہا ہوں، آپ بات کو سمجھیے. دروازے پہ روکا گیا ہے. یہ وہی شام ہے جہاں 40 سال سے ہولڈ ہے ایسی حکومت کا کہ جہاں مسلمان ہیں بہت، لیکن کیسے مسلمان ہیں؟ اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ جو تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے، یہ سب کچھ نہیں بتایا گیا بس. اور ایسی نسلیں آج بھی ہیں، بس اللہ بس اللہ بس اللہ، بس سمجھ جائیے کہ وہ ادھری والے ہیں، ادھر والے ہیں، یہ سب ادھر والے جو کہتے ہیں نا کہ بس ہمیں صرف خدا کافی ہے. سمجھ جائیے ان کو کس طرح سے ان کا برین واشنگ کی گئی. قافلے کو روکا گیا، کہیں ہے کہ 3 دن، کہیں ہے کہ 6 دن، تاریخوں میں اختلاف ہے، اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن قافلہ روک دیا گیا. اور جانتے ہیں جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو لے کر کے، کہا کہ امیر کا اعلان ہے، ابھی پہلے شہر کو سجا لینے دو، عورتوں کو حکم دو کہ نیا لباس پہنے، مردوں کو حکم دو کہ خوبصورت لباس آراستہ کریں، اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑیں، اور جب یہ قافلہ آئے، اب وہ منزل جو آپ مصائب میں سنتے ہیں، یہ قافلہ رکا ہوا ہے. اور کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہوتے ہیں. کسی بھی شہر میں مثال کے طور پر بھاؤ نگر آنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 راستہ ہو کہ بھائی ادھر سے چلو، نہیں ادھر سے چلو. کبھی کبھی ہم ہی تو لوگ کہتے ہیں عرفان بھائی نہیں ادھر سے نہ جایا جائے، ادھر بھیڑ بہت ہے، ٹریفک بہت ہے، 20 منٹ لگ جائے گا، 5 منٹ کا راستہ ہے، 20 منٹ لگ جائے گا، لہٰذا ادھر سے چلتے ادھر سے چلتے. سمجھ بات واضح ہو گئی؟ یہ سب مثالیں خالی وضاحت کے لیے میں کرتا ہوں، دل قریب ہو جائے، سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ کیا سن رہے ہیں. جناب ام کلثوم نے وہیں کہا اے شمر ادھر آؤ، وہ آیا، کہا سن دروازے تو بہت ہیں، بس اتنا کر دے اس دروازے سے لے جا جہاں بھیڑ نہ ہو. شمر سے کیا کہہ رہی ہیں؟ سن ایک کام یہ کر، اس دروازے سے ہم لوگوں کو لے چل جہاں بھیڑ نہ ہو، اور سن اگر ہو سکے تو ہمارے بھائی کا سر آگے آگے لے کے چلنا. جانتے کیوں کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ پبلک کی نگاہ اس کٹے ہوئے سر پہ رہے تو ہمارا کھلا ہوا سر نہ دیکھ پائے اور ہم لوگ گزر جائیں. لیکن شمر نے بالکل الٹا کیا، اس دروازے سے لے کر کے ان کی انٹری کروائی ہے اس شہر میں جہاں سب سے زیادہ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے. اور سر پہلے تو آگے بھی تھا نا، جب شہزادی نے کہا تو اس ذلیل نے سارے سروں کو اکٹھا کیا، کہا کہ نہیں ہر سواری کے پاس ایک سر کو لو، اور سب سے آگے حسین کے سر. پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ انہیں یعنی انسلٹ کی جائے، بے عزت کیا جائے. اور کیوں؟ تاکہ ہمارا امیر خوش ہو جائے، امیر خوش ہو جائے. اب جب یہ قافلہ پہنچا شہر کے اندر، اب وہ کیسے مرحلوں کو میں بیان کروں، مسائل ہو جائے گا، اس لیے میں گزر جا رہا ہوں جلدی سے. بس اتنا سمجھ لیجئے لوگوں کو یہی معلوم تھا، یہی علی کے گھر والے ہیں، یہی وہ شام ہے کہ جہاں امام زین العابدین کے امامے میں آگ پھینکی گئی تو آگ پھر کپڑے کو جلاتی ہوئی اندر تک پہنچی. یہی وہ شام ہے جہاں سے یہ عورتیں گرم پانی پھینکتی تھی، آ گئے خارجی، آ گئے خارجی، آ گئے، قافلہ آ گیا. ارے یہی بھائی یہی کیوں نہ، اچھا بتائیے کیوں نہ پھینکیں؟ جن کو بتایا گیا ہو کہ علی ایسے ہیں، جن کو بتایا گیا ہو کہ بچوں کے ساتھ اس طرح سے یہ کرتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے، کوئی دین سے ان کا مطلب نہیں، یہ لوگ تو دشمن ہے دین کے. وہاں بتائیے مسلمان ایسا جتنے ہیں نا وہاں سب مسلمان، سب مسلمان، لیکن آپ ان کی سطح دیکھیے، ان کا لیول دیکھیے آپ کس حد تک. آگ پھینک رہے ہیں، گرم پانی پھینک رہے ہیں، ستا رہے ہیں، پتھر اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتھر. اب وہ مصائب کا جملہ ہے نا جناب شیریں والا، وہ نہیں پیش کرنا ہو. پتھر کنیزوں کے جرموں میں پتھر لے کر کے آؤ، اور ان کو خوشی ملتی تھی اگر کوئی پتھر مارتا تھا. بس میں اس لیے میں بہت
संभल के, अभी चूंकि मसाइब पे नहीं हो, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है जो आपकी आंखें अश्कबार हो रही। अब जब ये काफिला पहुंचा है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कह देना आसान है कि ये काफिला करबला से कूफा और कूफा से शाम, ऐसे नहीं पहुंचा है। सलाम कीजिए खुदा की कसम, मैं तो कहता हूं कि कभी कभी तन्हा बैठा करिए, मैं कहता हूं बीवियों की बात ही नहीं करो, उन बच्चों की बात करो जो बीवियों की आगोश में, उनको सलाम करो। मतलब आप लोग किस मैच्योरिटी के लेवल पर थे कि कहीं शिकायत का मौका नहीं दिया किसी को, कहीं किसी बीवी को ये नहीं कहा अरे अम्मा किस काफिले में लेकर के आई है, आग बरसाई जा रही, शिकवा नहीं। एक बुखार की तपिश बढ़ जाए तो हमारे लबों पे शिकवे है। अब आप यानी मैं कहता हूं कि इस एंगल से भी समझिए करबला क्या है, हर कदम पे पैगाम है खुदा की कसम। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, 3 साल 4 साल है, छोटे छोटे बच्चे, कोई ये नहीं कर रहा कि अम्मा भूख से हम मर जाएंगे, कहां ये सब समझाने के लिए, कहां इन लोग के चक्कर में आप पड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझाने के लिए खाली कहूं ना, बिल्कुल राजी, सिर्फ एक चेहरा देखा जा रहा है, कभी ज़ैनब का जो इशारा मिल गया राजी, इमाम सज्जाद का जो इशारा मिल गया राजी। ऐसे आलम में अब आप समझ चुके हैं शहर का माहौल कितना सजा हुआ है ना, चारों तरफ से तबला बजा रही हैं औरतें, और वो उसको किस लैंग्वेज में क्या कहते नहीं मालूम, आवाजें निकाल रही हैं मुंह से, यानी वो आवाज तब निकालती जब उनके यहाँ खुशी का जब कोई बड़ा मौका होता है। ऐसे आलम में जब काफिला पहुंचा, दरबार में नहीं, सीढ़ी पे रोको, जो जामा मस्जिद है, जो हजरात शाम गए होंगे, जामा मस्जिद उसके बाहर सीढ़ी थी और वो सीढ़ी थोड़ा लंबी थी, वहां पर कहा कि रोको, वक्त नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे अफसोस है कि मैं नहीं पहुंचाया, हर चीज नहीं पहुंचा पा रहा हूं। कहा वहां रोको और इनको ना वहां खड़ा करो जहां गुलाम और कनीजों को खड़ा किया जाता है, वहां खड़ा कर दिया, वहां खड़ा कर दिया। अब ये लोग खड़े हैं, अच्छा मस्जिद है ना, जैसे आप ये एंट्री ले रहे हैं मस्जिद में और यहीं पे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया जाए कि भाई ये लोग ऐसे थे वैसे थे, ये करते हुए पकड़े गए, ये करते हुए पकड़े, तो हर आदमी क्या कहेगा आदमी मस्जिद में जो आएगा। आप सोचिए, मेरी जबान इजाजत नहीं दे रही कि मैं उन जुमले को दोहराऊं, हर चीज किताब में नहीं लिखी होती। 40 साल से जहां बताया गया हो कि ये कैसा घराना है, ये कैसे लोग हैं, और उन्हीं के बच्चे आए हैं, उन्हीं का लौटा आया है, उन्हीं के पोता है, उनकी पोती है, देखो उनकी ये भांजी है, ये अब जितने नमाजी आ रहे हैं सलवात पढ़ते आएंगे। बताइए आप, मेरी जबान इजाजत नहीं दे रही है, मगर आप पहुंचिए वहां तक। इसी आलम में नमाज पढ़ने के बाद देखिए मुसलमानों की हैसियत कैसी थी और कितना ब्रेन वॉश किया गया था उन लोग का। जब एक बूढ़ा बाहर निकला तो यूं सैयद सज्जाद और असीरों को देख करके कहता है, उस खुदा की हम जिसने तुम लोगों को, जुमला बदल लेता हूं, रुसवा किया और अमीर यजीद को जो है इज्जत बख्शी, और अच्छा हुआ कि तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब यहां कहते हैं हिकमत, यही है, हर कदम पे हिकमत है। इमाम ने कहा कि तुम, जाहिर बात है मस्जिद से निकल ना, कहा कि तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा कि हाँ। देखिए मोहब्बत थोड़ी कहेगा हाँ पढ़े हैं, नफरत, अभी पूरी नफरत भरी हुई है, अभी लानत मलामत कर रहा है और यजीद पे दुरूद भेजवा रहा है और खुदा की हम्द कर रहा है, शुक्र अदा कर रहा है। एक ऐसे आलम में इमाम ने कहा कुरान पढ़ा है? कहां पढ़ा है? कहा कि क्या ये आयत पढ़ी तुमने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल, कहां आपने पढ़ी है? कहा वो जिससे मोहब्बत का इकरार है और जिससे कहा गया वो जानती कौन हो? कहा नहीं जानता कौन। ये है मुसलमान जिनको कुरान तो पढ़ाया गया है, उनको ये नहीं मालूम कि मवद्दत यहाँ पे किससे करना है, मोहब्बत किसके शान में आयत नाजिल हुई है। ऐसे हाफिज आज बहुत है दुनिया में, जिन्हें कुरान तो याद है मगर कुरान के मफाहिम पे बिल्कुल नजर नहीं। वो बूढ़ा आदमी, बूढ़ा हो चुका है यानी है। अब आप सोचिए ना, मैं कहता हूं कि 11 हिजरी में पैदा हुआ हो तो भी 50 साल का है। अगर आप समझिए रसूलुल्लाह जब जा रहे हैं तो भी अगर पैदा हुआ तो भी, तो 50 साल में जो आदमी कुरान पढ़ के नमाजी हो गया हो, इस्लाम ला करके, वहां वाला इस्लाम है, ला करके नमाजी हो गया हो, उसको कुरान तो मालूम है
आयत भी मालूम है, ये हम लोग को याद करना पड़ता है, वो पैदा ही वही हुए जहां अरबी बोली जा रही है ना। ऐसे आलम में कर नहीं, हमको नहीं मालूम कौन है, कहा वो हम है, कहा वही तो हम हैं, हम उसी घराने के लोग हैं, हमसे कहा गया है मवद्दत के लिए। अच्छा जाहिर सी बात है, पहली बार कुछ बात कही जाए तो उतना यकीन। कहा अच्छा ये बताओ, क्या ये आयत तुमने नहीं पढ़ी है, वातिल कुर्बा हक़्क़ा, वही खुम्स वाली आयत का, ये जो हक अदा करने वाली बात है, वो जानते कौन, वो हम ही है। अब ये बूढ़ा जो है चौंक गया, अभी चौंक ही रहा था कि इमाम ने कहा अच्छा ये वाली आयत पढ़ी तुमने, कहा कौन सी, कहा इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा, कहां पढ़ी हमने, कहा वो जिसकी तहारत का ऐलान किया जा रहा है ना, वो हम ही लोग हैं। अब जब इस बूढ़े ने कहा खुदा की कसम क्या तुम ही लोग हो, कहा खुदा की कसम हम ही लोग हैं, अल्लाह की कसम हम ही लोग हैं। बस एक मरतबा वही चीख पड़ा, वही चीख पड़ा, और इमाम से कहता है मुझे नहीं मालूम था, अब चूंकि मालूम हो गया तो क्या मेरी माफी है, क्या मैं माफ हो सकता हूं। इमाम ने कहा हाय हाय, ये भी जिगर चाहिए कि जहां ऐसे हालात हो, जहां कनीजों की जगह पर इन लोगों को खड़ा किया गया हो, गुलामों की जगह पर, वहां भी तबलीग करना भूल नहीं रहे। ये है होता है हुसैनी मिशन, कि मकसद क्या है, कैदी बना दो, पानी बंद कर दो, जो कर दो, मकसद है हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाना। और हुसैन कह के निकले थे, हम जंग के लिए नहीं निकल रहे, नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। ये अब इस्लाह का जब मौका मिला तो भूख नहीं कहा, ये नहीं कहा कि पानी दे दो, मैं भूखा हूं, खाना दे दो, कुछ नहीं। इस्लाह अब एक आदमी की अगर हो रही है तो इमाम कुरान की आयतें सुना रहे हैं। खुदा की कसम, करबला फकत फजाइल मसाइब सुन करके ये बाहर जाके ये कहना कि आज मजा आ गया, मजे का नाम नहीं है, चेक करने का नाम है, आया हमारी इस्लाह हुई कि नहीं हुई, आया हमारा स्टेटस, हमारा मेयार पहुंचा कहां तक है। हम 40-50 साल के आज हो गए, हम किस काबिल हैं हुसैन के, अगर लश्कर सामने खड़ा हो जाए तो हम किस लश्कर में जाएंगे, कहां जाएंगे बताइए, किस सफ में हम खड़े होने के लायक हैं, किस सफ में बताइए। अगर इमाम आ जाए, आओ चलो आओ इरफान आओ नुसरत करो मेरी, अरे क्या नुसरत करेंगे, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात करूं, क्या मैं नुसरत करूंगा। मैं तो देखता हूं कि नमाज कितने बजे कज़ा हो रही है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं और अपनी तरफ मंसूब कर रहा हूं, बस 10 मिनट पहले उठो ताकि नमाज अदा हो जाए, कज़ा तो ना हो कम से कम। इमाम कहेंगे आओ सबसे अव्वल सफ में खड़े हो जाओ, ये रोने का मकाम है। खाली मसाइब सुन के रोना नहीं है, ये सोच के भी रोना है कि वो हमारा इमाम जिंदा है, गुनाहों का ऐसा पर्दा है कि हम देख भी नहीं पा रहे हैं, और फिर वही है मौला वहां रखना जहां आप हो, वैसा अमल तो हो जाए। बस इस पे जाऊंगा, बस मैं सोचा था कि 9 बजे खत्म करके मसाइब शुरू कर दूंगा, क्या करूं। बस एक दो जुमला और अर्ज करता हूं, चलिए कम से कम दरबार तक तो पहुंच जाए, और उन चीजों को छोड़ दूंगा जो आप अक्सर चौथे इमाम का खुतबा सुना करते हैं, वरना उस पर अगर बहस छोड़ूंगा तो 1 घंटा लगेगा। वही वो बुढ़ा ईमान लाता है, वही वो बूढ़ा शख्स ईमान लाता है। मौजू ऐसी बात ही चल रही थी, वो मुंह से निकल गया, और निकलना भी चाहिए। अभी तक तो बुरा था, अब अच्छा हो गया, तो जैसे ही अच्छा हो गया तो हमारे दिलों में भी नफरत से क्या मोहब्बत आ गई। क्यों? हमारी मोहब्बत का मेयार ये है कि हम ये नहीं देखेंगे कि तुम क्या हो, हम ये देखेंगे कि तुम्हारे दिल में इश्क अली है कि नहीं है। अगर इश्क अली नहीं है तो फिर हमारी जूते की नोक पर हो, चाहे कुछ भी हो, फिर नहीं, फिर हम नहीं समझते कौन है, फिर बाप हो तो रिश्ता तोड़ देंगे, बेटा हो तो हम दूर हो जाएंगे। हम ये देखेंगे कि इश्क अली हमारे यहाँ मेयार है। जब ईमान लाया ना उसने, इमाम ने कहा आप तू माफ हो सकता है, ये खबर यजीद तक पहुंचाई गई, उस जलील आदमी ने उस बूढ़े शख्स को कत्ल करवा दिया। ये है शाम में पहली शहादत, जो इस तरह से इमाम के जोश और मोहब्बत में वो एक इंसान रुखसत हो गया। अब यह काफिला, चलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूं, दरबार में पहुंचा। दरबार की हालत यह है, कितने कुर्सी नशीं, ये अजीब सा नहीं लगता, मैं कैसे समझाऊं। दुआ करें कि खुदा फिर तौफीक दे मुझे, कि मुझे आने का फिर कभी मौका मिले तो मैं खाली यही समझाऊं, शाम के हालात बताऊं आपको, उसमें काफी वक्त चाहिए। फिर मदीने के हालात, मदीने में कैसे फैला इस्लाम, ये हुसैन की मौला हुसैन की आजादी का क्या हुआ। बस खाली मेहराब में बैठ के इमाम वही दुआ पढ़ते थे, वो इमाम क्या जो मजबूर हो जाए, नहीं। अब जब पहुंचे 700, जानते हैं
उनमें वो लोग थे, शाम के कुछ लोग थे जो बहुत हाई क्लास के लोग थे, उनको बुलाया गया। 700 कुर्सियां, कहीं कहीं कि एक कुर्सी पे 3 लोग बैठे थे, तो यूं करके 7, उसमें जो है साहब अलग अलग, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अलग अलग स्टेट के लोगों को बुलाया गया था, अलग अलग शहर के भी लोगों को बुलाया गया था। और आओ, और आप समझिए बातों को, किसी स्टेट का जब सीएम आएगा ऐसे ही आ जाएगा, नौकर चाकर नहीं रहेंगे उसके, और वो यूं ही आ जाएगा और हाथ झुलाते हुए चला जाएगा। अरे वो आज भी जहां जरा सा हरकत होती है तो 75 कैमरे घूम जाते हैं। उस जमाने में कैमरा नहीं, कलम और कागज। पूरा यजीद का दरबार खाली 700 कुर्सी नशी नहीं, वहां पे न जाने कितने मुल्क के लोग और जाने कितने रावी, जो बस यूं पूरा मीडिया है। आप समझिएगा इस बात को, पूरा मीडिया है कि जैसे इधर कुछ एक्शन हो दिखे, कौन लोग थे, ये सब कुछ भर चुका है पेज अभी, यहाँ कि कौन लोग आए हैं, खारजी हैं, फला हैं और डेका हैं, ये है वो सब लिखा हुआ। अब मेन चीज, अब वो काफिला आ चुका है। अब ये लिखने के लिए मेन समझ लीजिए कि उस किताब का सबसे अहम मोड़ आ चुका है। अब ये पूरा जितने मुअर्रिखीन है, जितने वहां पर लिखने वाले हैं, अलग अलग ममालिक के लोग हैं वहां पर, इतने में यजीद बहुत सी चीजों को छोड़ दिया। मैं यजीद ने हुक्म दिया अपने बिके हुए खतीब को, जाओ। अब आया मिंबर पे, अब जो यजीद की साहब क्या कहना उसके बारे में, वो इतनी तारीफें, अब वो झूम रहा है। और फिर उसके बाद जो अहले बैत की तरफ इशारा कर करके जो उसने बदतमीजियां की हैं, जो जुमले बोले हैं, अभी ये सब बोल ही रहा था। अब आप सुनिए कि जहां यजीद बैठा हो और जहां उसको सब अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल्लाह और तमाम अलकाब से नवाज रहे हैं, और यहां ये समझिएगा पेपर जो भी उस जमाने का जैसा भी रहा हो, कलम लिखा जा रहा है, खतीब ने ये कहा, खतीब ने यजीद के बारे में ये कहा, खतीब ने इनके बारे में ये कहा, ये है, ऐसे है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ऐसे में एक मर्तबा ललकार करके जंजीर और बेड़ियों में जकड़े हुए इमाम ने कहा कि खतीब खामोश। ऐसी धमक की आवाज में कि एक मतलब वो चुप हो गया। यार तू क्या कह रहा है, तू देख, अच्छा जुमला देखिए इमाम का, क्या कहूं, यानी रुकना पड़ता है, एक एक जुमले में रुकिए। इमाम कुछ भी कह सकते थे, तुम हमको बुला कह रहे हो, ये कह रहे हो, नहीं, बताया क्या गया है, इस्लाम से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, कोई वही नहीं नाजिल हुई है, ये खारिजी लोग हैं, इस्लाम से खारिज है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और इमाम ने पहला जुमला कहा जो खबर पहली हेडिंग बन गई, जानते हैं क्या? पहला जुमला इमाम ने कहा कि बिका हुआ खतीब, अरे तूने खुदा को नाराज करके यजीद को खुश करना है। नहीं तवज्जो दिया आपने, ये मजमा क्या जानता है कि इनका ताल्लुक खुदा से है ही नहीं। इमाम ने पहली मोहर लगा दी ये कह के हम ही है वो खुदा वाले, और हमारा पहला जुमला तो सुने, ए खतीब तू खुदा को नाराज करके यजीद को खुश कर रहा है, अरे तेरे लिए तो जहन्नम है। और यजीद कह रहा था नहीं, इनका जहन्नम से ताल्लुक, यानी न ये इस्लाम जानते, ना खुदा जानते, ना कुछ नहीं जानते हैं। और वहां इमाम ने पहली हेडिंग लोगों से लिखवा दी, हम ही खुदा वाले हैं, यजीद को समझो कौन। पहली हेडिंग, पहला जुमला। अब वो घबरा के अब चलाया नीचे, उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कुछ बोलने की, वो धमक दी। एक मरतबा बहुत देर तक वो बोलता, अच्छा इमाम ने भी कहा बोलो, जब खूब बोल लिया तब पहले ही नहीं रोका, पहले खूब जो, अब इमाम ने कहा कि यजीद, नहीं तवज्जो दिया आपने, सब अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल्लाह, सरकार, अब न जाने कितने अलकाब नवाजे जा रहे हैं, वहां पर क्या यजीद। आज पूरी दुनिया में ये जो कहा था यजीद मुर्दाबाद, ऐसा नहीं, वही दरबार में 2 लोगों को मरवा दिया था, रोम का सफीर, वही खत्म, मर, काट दो इसको, हमारे खिलाफ बोलता है। वो वाकया छोड़ेंगे टाइम, मर इसको, एक सहाबी रसूल का खत्म कर दो उसको। जहां कत्ल किया जा रहा है वहां इमाम क्या कर रहे हैं, यजीद। ये जो यजीद मुर्दाबाद बच्चे और बूढ़े जवान सब लगा रहे हैं, यजीद इतना बौना नहीं था, इसको बौना बनाया है तो सज्जाद के और ज़ैनब के खुतबों ने बनाया, इतना वो नहीं था। बस अज़ीज़ान मोहतरम,
جلدی جلدی میں باتوں کو آج پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا اے یزید، پورا دیکھیے گا آپ بات کو سمجھیے، چاروں طرف جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. ہماری طرف ذہن نہیں تھا کہ کل آپ بھول گئے. 700 یزید حدیثیں یاد رہتی تھی، کسی کو 400 حدیث یاد ہے، کسی کو 800 حدیث یاد ہے، ہم کو تو فون نمبر بھی نہیں یاد ہے. وہ حالات سمجھیے، میں حالات کو سمجھا کے تب بتا رہا ہوں کہ کہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں. بس عزیزان محترم، بہت معذرت کے ساتھ مجھے 5 منٹ زیادہ دے دیجیے گا آج بس، ورنہ میں سوچا تھا کہ مصائب پہ آ جاؤں گا، ورنہ اس کو نہ پڑھوں تو کیا کروں میں. عزیزان محترم، بس ایک مرتبہ کہا ہے یزید مجھے بھی ذرا اس لکڑی کے ڈھیر پر جانے دے. اب وہ سب آپ کا سنا ہوا، اس پہ نہیں جانا کہ لکڑی ڈھیر اور ممبر یہ سب کچھ نہیں. بس ایک مرتبہ یزید نے کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. اچھا دیکھیے، جو شہر کے لوگ تھے وہ تو چپ ہو گئے، اور جو الگ الگ ملک کے سفیر آئے تھے، بھائی وہ الگ ملک کے ہیں نا، وہ وہاں کا حاکم اور ان کی مملکت، تو اتنا خوف تھوڑی یزید کا ان لوگ کا. اے یزید جانے دو، یہ کیا بولیں گے، دیکھ رہے ہو ہاتھ میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، یہ وہ. نہیں. یزید جانتا تھا ابھی جائیں گے تو ہوگا کیا. یزید جانتا، سلامت رہو، خوش رہو بیٹا تم لوگ. یزید جانتا تھا کہ ابھی ہوگا کیا. ایک مرتبہ ادھر سے کسی کوئی ادھر سے ارے جانے دو. اچھا جب لوگوں کو لگا کہ کچھ تو معاملہ ہے تو اور آواز بلند ہو گئی، ارے جانے دیجئے. بس ایک مرتبہ جب اللہ چاہتا ہے نا تو ہو جاتا ہے. وہی بیٹھا تھا ایک دم بازو میں، جانتے کون؟ یزید کا بیٹا. خوش ہو کر کے اپنے ابا کے نام پہ رکھا تھا، اس کا بھی نام معاویہ تھا. معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان. تو معاویہ نے، اس کے لڑکے نے کہا کہ جانے کیوں نہیں دیتے، اتنے کمزور، خود ہی کاپ رہے ہیں، یعنی ہتکڑی بیڑی، یہاں سے خون اور یہاں سے، یہ کیا بولیں گے. بس ایک مرتبہ جب خدا چاہتا ہے تو یہی ہوتا ہے. کہنے لگے بیٹا تم کو کیا معلوم، یہ لوگ خاندان رسالت کے ہیں، ان کو علم ایسے چگایا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو چگاتی ہیں. ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ بے دین ہے، یہ لوگ ان کے رسالت سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی خانہ کعبہ، نہ کوئی وحی. اور ابھی اپنے ہی منہ سے کیا کہہ رہا، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان رسالت کے ہیں. سنیے بس عزیزان محترم، مختصر کر دیا. تو اب جب یہ کہا تو اور سو نہیں، جانے دو. اب جب عزیزان محترم، جو امام گئے ہیں، وہ خطبہ دیا ہے، جو خطبہ کم سے کم ایک مجلس ہو تو پڑھا بھی جائے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی خطبہ دیا امام نے، تو کیا ہے، دشمن ہے نا چاروں طرف، تلوار، نیزہ، یہ تمام چیز لی ہوئے. ابھی امام کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں، یہ حکمت دیکھیے خدا کی قسم، بس آخری مرحلے میں ہے. امام کہہ دے میں علی کا بیٹا ہوں، کوئی پتھر نہ چلا دے، کوئی خنجر نہ مار دے، کوئی تلوار نہ پھینک دے. امام نے، اچھا یہ کیا کہہ رہا تھا، ان کا تعلق بے دین ہے، یہ ہے وہ ہے. تو کہاں سے بات شروع کی جانتے ہیں، کہا میں صفا کا بیٹا. ارے یزید تو کہہ رہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ صفا مروہ کیا کہہ رہے ہیں. اب پورا مجمع، ہاں بولیے، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں ابراہیم کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جسے جبریل مکے کی وادیوں سے لے کر کے پھر بیت المقدس تک پہنچا، میں اس کا بیٹا جسے جبریل عرش کی بلندیوں پہ لے گیا. اب پبلک حیران. دیکھیں یہ خطابت کا انداز ہوتا ہے، یہ نہیں بتا رہے میں کون ہوں، پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم جانتے ہو وہ سنو. میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا. یہ سارے وہ نبیوں سے منسوب ہے جو پہلے گزر چکے، یہ سب جانتے ہیں. یہ ابراہیم کی بات کر رہے ہیں، یہ اسماعیل کی بات کر رہے ہیں، یہ عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں. ارے یہ تو معراج کی بات کرنے لگے، ارے یہ جبریل کی بات، یہ تو بے دین لوگ ہیں. اور کون ہیں آپ، کون ہیں؟ کہا میں اس رسول کا بیٹا جسے معراج میں لے کر کے گیا. پھر کہتے ہیں، پھر جب معرفی کرواتے رسول اللہ، انبیاء، پھر آخری نبی، پھر کہتے ہیں میں اس علی کا بیٹا جس نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی. اور پھر جو مولا کے فضائل خود چوتھے امام نے تقریباً 30-40 فضیلتیں گنوائی مولا کائنات کی. پھر اس کے بعد کہا کہ میں حسین، اسی کے بیٹے حسین کا میں بیٹا ہوں، یہ حسین کی بہنیں. پھر مسائل بھی پڑھ دیا. اور اتنا گھبرا گیا یزید نے کہا
मुअज्जिन अजान को जल्दी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मद, जब यहाँ तक पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो खुदा का वास्ता है रुक जा, तू रुक जा, ये बता दे जिसका नाम तूने लिया है ए यजीद, ये तेरे जद है या मेरे जद है? अगर तू कहता ये तेरे जद है तो तू फासिक झूठ बोल रहा है, ए मरने वालों ये मेरे जद है। उसी के नवासे हुसैन को मार दिया। बस अज़ान मज़लूम करबला, मजलिस तो तमाम होने का वक्त था, आखिरी मजलिस थी, बस 5 मिनट 7 मिनट में मसाइल तमाम कर दूंगा। हर कदम पर इन लोगों ने हुसैनी मिशन, यही हमारा मौजूद है ना, हुसैनी मिशन को मद्देनजर रखता। बस एक मर्तबा का हटाओ, जल्दी जल्दी कैद खाने में डाल दो, ऐसे कैद खाने में डाला गया। अल्लाह अकबर। कभी ठंड में आपने बाहर सफर किया है? कहा हाँ किया है। आप क्या चाहते हैं? ऐसी जगह लेटे कि जहां पर हमें छत मिल जाए, दिन में धूप और रातों में शबनम, और ऐसा कैद खाना कि दरवाजे पर सैयदे सज्जाद आकर के खड़े हो जाते थे और साथ में सकीना खड़ी हो जाती थी, ताकि जाने वाले ये ना देख सके कि अली की बेटियां अंदर है। अगर कोई देखता हुआ जाता था तो सैयदे सज्जाद कहते थे नजर झुका ले, अली की बेटियां है अंदर, जज़ाकुमुल्लाह, अली की बेटियां है अंदर। इतने में बच्चों का गुजर हुआ। बच्चों की आदत है, बच्चे गैर हालत देखते हैं ना तो यूं देखते हैं। बस किसी बच्चे ने पूछ लिया कि ये आपके कानों में कैसा लहू बह रहा है? अच्छा, ये आपका दामन क्यों जला हुआ है? ये कैसे निशानात हैं आपके? आप क्यों रोती रहती हैं? तो जनाब सकीना ने सवाल पर एक सवाल कर लिया। कहा अच्छा बच्चों ये बताओ तुम्हारे बाबा हैं? कहा हाँ हाँ हमारे बाबा हैं। और सकीना ने एक जवाब दे दिया, कहा देखो जो यतीम होता है ना उसकी यही हालत होती है। खुदा इन आवाज़ों पर भी रहमत नाज़िल फरमाए। बस अज़ादारों, ये बच्चे घर दौड़े हुए गए, अम्मा आज जिंदान से आ रहे हैं, अजीब कैदी है। खुदा की कसम ये सकीना का जुमला नहीं था। सकीना तो चाहती थी जाकर के ये अपनी घर की उन औरतों को बचाए जो तबला बजा रही थी, ताकि उनको समझ में आए कि हम कौन है। अम्मा एक बच्ची को देखा जिसके कान फटे हुए थे। अम्मा एक बच्ची को देखा जो कहती है बाबा, और दारो कतार रोती है, बाबा दारो कतार रोती है। बस एक बस मुख्तसर कर दिया। कैद खाने में अंधेरा छाया हुआ है। एक मर्तबा सकीना उठी और उठ के कहती है अरे मेरा बाबा कहाँ गया? ए भैया सज्जाद, मेरा बाबा कहाँ गया? सैयद सज्जाद इमाम वक्त है, कहने लगे मेरी बहन क्या हुआ? कहने लगे बाबा अभी तो आए थे बाबा। कहने लगे क्यों कह रही हो? क्या मैंने देखा कि मेरे बाबा आए हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। और ये भैया सज्जाद कह रहे थे सकीना हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं बिल्कुल ये सब नहीं कहने का आदि हूं कि ऐसे रोइए वैसे रोइए, अपनी मार्फत के हिसाब से रोइए। मजलूमे पे आप ना रोएंगे तो फिर कौन रोएगा? बस एक मर्तबा अहले बैत के घर के लोग थे ना, बीवियां जाग गए, सारे लोग जाग गए, आवाजें गिरिया बुलंद हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कहते हैं कि जैसे बतूल ने रात में ख्वाब में अपने बाबा रसूल को देखा था और शहादत हो गई थी, और उन्होंने भी कहा था कि मेरे बाबा कह रहे थे फातिमा हम तुम्हें लेने आए हैं। आज जिंदान में छोटी बतूल से इमाम हुसैन ने ख्वाब में आके कहा सकीना मैं तुम्हें लेने आया हूं। अच्छा, इतनी आवाजें गिरिया बुलंद हुई, तो कैद खाना और ये यजीद का महल। एक मर्तबा वो घबरा करके खिड़की खोलता है और सिपाहियों से जरा जाओ पता तो करो हुआ क्या है, अरे रात के इस पहर में क्यों रो रहे हैं? बस एक मतलब कैदी आया, क्यों रो रहे हैं तुम लोग? का वो हुसैन की बच्ची है ना, उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। अमीर वो बच्ची नहीं है, उसने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है। बस एक मर्तबा कहता कहीं वही बच्ची तो नहीं जिसका दरबार में इम्तिहान लिया गया था? कहा है वही बच्ची है। बस तरफ जाइएगा, हमारे घर में भी बच्चे हैं, जब वो रोते हैं ना तो हम उन्हें बहलाने के लिए गोद में लेके निकल जाते हैं, और बाप गोद में उठा करके जाके खिलौने की दुकान पर या कुछ दिला देता है। मगर हाँ ये तो रबाब की बेटी की किस्मत। हाँ, रबाब की बेटी को ना खामोश कराने के लिए यजीद ने कुछ ऐसी चीज नहीं भेजी, हुसैन का कटा हुआ था। मतलब मुख्तसर कर रहा हूँ। मजलूम करबला, जैसे ही सन को भेजा मसाले रोशन कर दी गई है। मतलब हर बीवी पीछे खड़ी हुई है। सकीना तौड़ी जैसे ही सकीना तौड़ी बाबा कहती है भैया सज्जाद में कहती थी ना मेरा बाबा आ गए, लो मेरा बाबा आ गया।
भैया सज्जाद ने कह दी मेरा पापा आ गया, मेरा पापा आ गया। तो एक तो सर हुसैन लिया, और सर हुसैन लेने के बाद बस जैसे ही उठाया, हुसैन ने आंखें बंद कर ली, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। बस कहती है बाबा, बाबा आंखें खोलिए ना, बाबा आंखें खोलिए ना, बाबा आंखें खोलिए ना। अब जब हुसैन ने आंखें नहीं खोली ना, तो रफ्तारों पे हाथ रखा, तो जुल्फों में हाथ फैलाया और एक सवाल करती है, बाबा आपकी रगों को किसने काट दिया, बाबा आपके चेहरे पे खंजरों के निशान कैसे हैं, बाबा बाबा आपकी जुल्फों में ये खास कैसी है, बाबा छोटी सी बच्ची चार, बाबा बताइए ना। जब बाबा आंख तो खोलिए। अब जब आंख नहीं खोली ना, अब सकीना ने कहना शुरू किया, बाबा आंख खोलिए ना, जरा मुझसे भी तो पूछिए ये कानों से लहू क्यों बह रहा, बाबा आंखें खोलिए, बाबा मुझसे भी तो पूछिए ना मेरे दामन में आग क्यों लगी, बाबा आंखें खोलिए ना, मुझसे पूछिए ये कैसे समाज हो गया बचान। और एक मर्तबा अल्लाह मजलूम करबला और तारीख ये कहती है कि एक मर्तबा रफ्तारे से बस खत्म कर दिया मजलिस, रफ्तारे से रफ्तारा मिलाया, बीवियों में जो हराम पैदा हुआ, सज्जाद पर झुकाए हुए पड़े हो। एक मर्तबा सारी आवाज आ रही, सकीना की नहीं आई। ज़ैनब ने सज्जाद को देखा, सज्जाद ने इशारा किया, अम्मा बात को संभालिए।